So, we start with nomenclature of organic chemistry. Whenever we have an organic compound and you have to name it, it actually has three parts. One is word root. Attached to the word root is prefix followed by a suffix. Word root actually has, or word root indicates number of carbon atoms or the parent chain. Or the parent chain. For example, if you have one carbon, you call it methane. That means if there is one carbon, the word root is meth. If there are two carbons, it is eth. If there are three carbons, it is. If there are four carbon, if there are five carbon, 6, 7 is hept, 8 oct, 9 non, 10 dec, and 12 is do, dic. So, when we are talking about word root, we actually want to show how many carbon atoms are there in the compound. Then you have to talk about prefix. What is prefix? Oh, duster. Yay? Achha, sorry. So, word root, if you all know it, if there is one carbon, you call it meth. If there are two carbons, you call it eth. 3 carbon prop, 4 carbon but, 5 carbon pent, 6 carbon hex, 7 carbon hept, 8 carbon oct, 9 carbon non, 10 carbon dec, 11 carbon undec, and 12 carbon is dodec. Now, if we come to prefix, there are also two types. 1 degree prefix, or you call it better, we call it primary prefix. And this is secondary prefix. Primary prefix is when you have a cyclic compound, you are going to use the term cyclo just before the word root. It is just before the word root you use the primary prefix, that is cyclo, and secondary prefix is the substituents. The substituents. That means first of all it is secondary prefix, then if at all there is a primary prefix, then you go for this, and primary prefix is cyclo word. If the compound is cyclo, you are going to use the term cyclo. Otherwise, we don't use this primary prefix, we use only the secondary prefix, which is actually a substituent. I will be talking about substituent later on after some time, but you remember this, secondary prefix is a substituent, primary prefix is cyclo. We normally use the term cyclo whenever we want to show that the compound is cyclic. Then you have word root, then you have primary suffix, and then you have the secondary suffix. Now, what is primary suffix? Primary suffix is it represents the type of linkage. It represents the type of linkage.
and secondary suffix, it represents the functional group. Functional group. So finally, what is the conclusion drawn? Whenever you have a name, you start with a secondary prefix. Secondary prefix is actually the substituents. The substituents may be any alkyl group, it may be a nitro group, it may be a chloro, bromo, nitro, any of these things. Then you have primary suffix. Primary suffix will be used only when you have a cyclic compound. Then the word root, it will give you the actual number of carbon atoms present in the compound. Then you have a primary suffix. Primary suffix shows the type of linkage, whether there is a double bond, whether there is a single bond, or there is a triple bond. And then you have the secondary suffix, which will give you the type of functional group present in the compound. Functional group means it can be an alcohol, it can be an acid, it can be an aldehyde, it can be a ketone, it can be an ester, it can be a cyanide. Any of these, which type of a compound mainly it is, that will be given by the secondary suffix. So let's start how to use all these things in actual situation. When you have, जब आपके पास में सही में कोई कंपाउंड होगा तो आप इन चीज़ों को किस तरह यूज़ करेंगे, चलो हम एग्जाम्पल्स के साथ इनको समझने की कोशिश करते हैं. तो आई होप आप ये वाली बात तो समझ गए. क्या है, एक बार हम लोग फिर से रिपीट करें. सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सबसे पहले हमें लिखना होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स. सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या चीज़ बताता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें ये बताता है कि कौन से टाइप का सब्स्टिट्यूएंट वहाँ पे लगा हुआ है. वो एल्काइल है, एल्काइल में भी बहुत सारे एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, या फिर वो क्लोरो है, या ब्रोमो है, या आयोडो है, या नाइट्रो है. वो हमें कौन बताएगा? वो हमें बताएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स. प्राइमरी प्रीफिक्स हमें सिर्फ ये बताने वाला है कि कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं. यदि साइक्लिक है तो हम साइक्लो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. वर्ड रूट हमें देने वाला नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. प्राइमरी सफिक्स हमें देने वाला है कि वो कंपाउंड में डबल बॉन्ड्स हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है या सिर्फ सिंगल बॉन्ड है. और सेकेंडरी सफिक्स हमें फंक्शनल ग्रुप बताएगा. तो हम इन चीजों को अब एक्सटेंडेड वे में यूज करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट इज नेमिंग और सब्स्टिट्यूटेड और ब्रांच्ड एल्केन्स. सबसे पहले अपन शुरू करते हैं एल्केन के साथ. नेमिंग अ सब्स्टिट्यूटेड और ब्रांच्ड एल्केन. एल्केन अभी अपन ने समझे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब होते हैं एल्केन्स. इनमें यदि सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे? उसके कुछ रूल्स होते हैं. उन रूल्स को फॉलो करके ही हमें प्रॉपरली नेमिंग करना सीखना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो आपको ये बताया जाए कि सब्स्टिट्यूएंट्स हो कौन कौन से सकते हैं. और वो भी मैं एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रही हूं. अपन बात करते चलो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं. जब एल्काइल की बात होती है तो एल्काइल का मतलब होता है एल्केन में से यदि हमने ANE माइनस कर दिया और प्लस Y कर दिया तो ये बन जाएगा एल्काइल ग्रुप. मतलब मिथाइल, मिथाइल क्या होगा? CH3. इथाइल, इथाइल क्या होगा? इथेन में से हमने यदि एक H माइनस कर दिया तो हमें मिल जाता है C2H5. यह है इथाइल. थर्ड जो होगा मिथाइल, इथाइल. अब हम बात करेंगे प्रोपाइल की. अब प्रोपाइल में हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं. प्रोपाइल में दो चॉइसेस क्या होगी? या तो वो नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप होगा जिसको हम ऐसे लिखेंगे CH3, CH2, CH2, और या फिर वो होगा आइसोप्रोपाइल. आइसोप्रोपाइल क्या होता है? CH3, CH, CH3 और बॉन्ड यहां पे है. अब डिफरेंस देखो,
यदि मैं प्रोपाइल ग्रुप की बात कर रही हूं तो दोनों ही केस में प्रोपाइल मेरे पास है C3H7। प्रोपाइल का मतलब भी है C3H7, बट वहां पे दो लिंकेजेस पॉसिबल हैं। आप फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट करते हो कि आप सेकेंड कार्बन से कनेक्ट करते हो। यदि आपने फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट किया तो आप उसको नॉर्मल प्रोपाइल बोलेंगे, और यदि आपने उसको सेकेंड कार्बन से कहीं किसी लॉन्ग चेन है आपके पास में, उसमें आपने यहां से यदि कनेक्ट कर दिया है उस 3 कार्बन की ब्रांच को, तो हम उसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। तो एक हुआ प्रोपाइल, एक हुआ आइसोप्रोपाइल, जबकि मिथाइल और इथाइल में ऐसा कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं होता। अब हम बात करते हैं C4H9। इसको बोलने को तो हमें बोलना पड़ेगा दिस इज कॉल्ड ब्यूटाइल, बट देयर आर 4 ऑप्शंस फॉर ब्यूटाइल। There can be 4 different ways we can connect butyl to a long chain. What are they? Number 1, suppose I connect it to the first carbon atom. यदि ये पहले कार्बन एटम से कनेक्ट होता है, then what do we call it? This is normal butyl. This is normal butyl. पर यही यदि मैं सेम चेन को सेकेंड कार्बन से कनेक्ट करती हूँ, सेकेंड कार्बन से यहां पे यदि बॉन्डिंग आती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस इज नॉर्मल ब्यूटाइल, और यू मे कॉल इट प्राइमरी। बट व्हेन यू नेम इट, you just write butyl. You don't need to write primary butyl. You just have to say it's butyl. But when the bonding carbon is a second carbon, you call it secondary butyl. Then there is one more way of naming this. There is one more way of naming this. If this is the carbon attached to the long chain, then this is numbered as 1. This is numbered as 1. This is 1. This is 2 and this is 3. The carbon which is directly attached to the chain is always named number 1. So name of this branch is 1-methyl. Then you have propyl. Such substituents are complex substituents. Such substituents are complex substituents when you have a branch having another branch. जब ब्रांच की भी ब्रांच होगी तो आप उसको बोलोगे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। जब सिंपल ब्रांच होगी, उसकी कोई ब्रांच नहीं है, तो इट्स ए नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट, इट्स ए सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। पर यदि ब्रांच की भी ब्रांच है तो आप उसको बोलोगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, और आप उसको पैरेंथेसिस में या ब्रैकेट में लिखोगे। तो ये जो नेम है ना, ये नेम ट्रिवियल नेम है। ये नेम जो है ये ट्रिवियल नेम है। तो हम जब IUPAC सिस्टम में नेमिंग करते हैं तो ब्रांच को ट्रिवियल नेम से भी नेम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उस ट्रिवियल नेम में या उस ब्रांच में कोई और ब्रांच ना लगी हो। I hope you understand. Please try to understand. This is a special point. You need to know it. What is that? कि यदि मेरे पास एक सिंपल ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ये क्या है? ये सिंपल ब्रांचेस है। पर मैं ये वाली जो ब्रांच है, ये जो मेरी एक ब्रांच है, ये या तो मैं इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलूंगी, ये इसका ट्रिवियल नेमिंग है, और ये हम इसको यूज कर सकते हैं IUPAC नेम में भी यदि ये एक ब्रांच है, और इसको हम कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं। यदि मैं इसको नेम ऐसे करती हूँ 1- मिथाइल प्रोपाइल, आप समझ रहे हो, इसकी पेरेंट ब्रांच जो है वो प्रोपाइल है, ये अपनी मेन ब्रांच है, उसमें ये पेरेंट ब्रांच है, उस पेरेंट ब्रांच की भी ये ब्रांच है। तो हमें यदि इस चेन की नंबरिंग को इस चेन की नंबरिंग से डिफरेंट करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 1-, इसको 2- और इसको 3- लिख सकते हैं। अब बहुत क्लियर है कि मेन ब्रांच तो मेरी प्रोपाइल थी, पर उस प्रोपाइल के फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल लिखा हुआ था, इसलिए हमने क्या बोला इसको 1- मिथाइल प्रोपाइल। तो दोनों अलाउड है, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, आप दोनों में से जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं।
अब इसी का थर्ड ऑप्शन जो मेरे पास है वो है जब मैं ऐसे नेमिंग करूंगी, जब 4 कार्बन को इस तरह अरेंज कर दिया जाएगा, जहां पे बीच वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप होगा, तो उसके लिए भी हमारे पास ये ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है आइसोब्यूटाइल। दिस इज आइसोब्यूटाइल। दिस इज ट्रिवियल नेम बट दिस इज ऑल्सो अलाउड। ये ट्रिवियल नेम है बट दिस इज ऑल्सो अलाउड, आइसोब्यूटाइल। अब सी द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। ये पूरी स्ट्रेट चेन थी, उसके सेकेंड कार्बन से हमने लॉन्ग चेन को अटैच किया था। यहां पे हमारे पास एक 3 कार्बन की चेन है जिसके सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच है, और यहां से हमने मेन चेन पे अटैच किया है इसको, यहां से। तो इसका नाम हो गया आइसोब्यूटाइल। अब आप एक और कॉम्प्लेक्स यदि इसको बनाना हो तो हम कैसे नेम करेंगे? इसकी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 और ये रहा 3। ये हमने इस ब्रांच की, ये एक ब्रांच है, ये जो है ये पार्ट एक ब्रांच है, इस ब्रांच की भी ब्रांच ये है। तो आप गेस कर सकते हो इसकी कैसे नेमिंग करेंगे? शायद आपने सही गेस किया। क्या गेस किया आपने? आपने लिखा है जिस भी पोजीशन पे ब्रांच लगी है उसके आगे आपने इसे डैश खींच के आपने लिख दिया है 2 मिथाइल, और फिर मेन ब्रांच का नाम क्या है? प्रोपाइल। तो अब आपके पास इसके 2 नाम हो गए। ये जो थर्ड ऑप्शन मैंने लिया है C4H9 का, वो एक ऑप्शन ये है, ये रहा हमारे पास। इसके 2 नाम हो गए। कौन कौन से 2 नाम हो गए? इसका एक नाम है आइसोब्यूटाइल विच इज ट्रिवियल नेम विच कैन बी यूज, और दूसरा नाम है 2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, तो अब हम इसको यदि समराइज करें तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है? तो हमारे पास फर्स्ट सीधा सीधा C4H9 वाले केस में यदि हम बात करें तो पहला केस क्या आ रहा है हमारे पास? हम बात कर रहे हैं C4H9 की, तो हमारे पास पहला केस आ रहा है CH3 CH2 CH2 CH2, और यहां पर बॉन्डिंग होगी तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल। यदि मेरे पास सेकेंड केस ऐसा आया CH3 CH2 CH3 और मैं बॉन्डिंग यहां से करती हूं, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है या तो मैं इसको बोल दूं सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये चलेगा, या फिर मैं इसको बोल दूं, आपको क्या सिखाया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले, कि इसको 1 इसको 2 इसको 3। तो फिर कैसे नेमिंग होगी? ये ब्रांच की भी ब्रांच है और ये एक ब्रांच है जो मेन चेन से जुड़ी हुई है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल, और मेन ब्रांच में 3 कार्बन है इसलिए आप इसको बोलोगे प्रोपाइल। अब तीसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास में? CH3 CH, फिर यहां पे हमने CH3 किया। इसको और अच्छे से यदि लिखना है तो चलो ऐसे कर देते हैं जिससे आप एकदम क्लियर रहो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये है CH3, ये है CH, ये है CH3, यहाँ ये CH2 आई एम सॉरी, और ये यहाँ पे बॉन्डेड होके यहाँ पे हमारे पास एक CH3 है जो ब्रांच की भी ब्रांच है, और फिर हमने इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 और ये 3। तो इसके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा, जो इसका ट्रिवियल नेम है वो है आइसोब्यूटाइल। ये अलाउड है, ये ट्रिवियल नेम है, फिर भी ये कॉमन नेम है, ये फिर भी IUPAC सिस्टम में जब ये ब्रांच है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड वाला गैस करोगे? यस, आपने पक्के से यही गैस किया है, ये है
2' मिथाइल प्रोपाइल। मेन ब्रांच तो प्रोपाइल थी, ये मेन ब्रांच है, ये प्रोपाइल थी, पर इसके सेकेंड कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ था, और क्योंकि ये मेन चेन की ब्रांच है, तो मेन चेन को यदि हमने 1 2 3 4 नंबरिंग करी होगी, तो हमने ब्रांच को नंबरिंग करना था 1' 2' 3', और जहां पे वो मेन चेन से अटैच होगा कार्बन, उसी कार्बन को कार्बन नंबर 1 बनना ही पड़ेगा। 1' या 1' carbon is the one which is attached to the main carbon chain. Okay, then you have fourth option also. Fourth option is CH3, C, यहाँ भी एक CH3, यहाँ भी एक CH3, and this is attached to the main chain. This is attached to the main chain. तो हम इसकी जो मेन अपने को ब्रांच, जो मेन ब्रांच है वो ये है, और ये उसका सब्स्टिट्यूएंट है। तो मेन ब्रांच की नंबरिंग हमको कैसे करनी पड़ेगी? यहाँ पे एक्चुअली यदि हम देखेंगे तो क्योंकि ये कार्बन यहाँ पे अटैच्ड है, तो हमें इसको ऐसे ही लेना पड़ेगा। ये दो अपने को ब्रांचेस लेनी पड़ेंगी, और एक हमें लेना पड़ेगा 1' और ये 2'। तो हमें क्या नेमिंग करनी पड़ेगी? फर्स्ट जो ट्रिवियल नेम है वो तो हम बोलेंगे इसको टर्शियरी ब्यूटाइल, और दूसरा जो नेम है वो कहलाएगा 1' डाइमिथाइल इथाइल। ऐसे भी नेमिंग हो सकती है। यदि मेरे पास ये ग्रुप मुझे कहीं पे एज ए ब्रांच दिखाई देता है, यदि ये ग्रुप मुझे एज ए ब्रांच दिखाई देता है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ट्रिवियल नेम यूज कर लूं टर्शियरी ब्यूटाइल, या फिर मैं यूज करूंगी 1' डाइमिथाइल इथाइल, क्योंकि आपको यहां दिखाई दे रहा पेरेंट ब्रांच इथाइल है, उसके फर्स्ट कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं मिथाइल। दिस इज हाउ आई डील विथ अ सब्स्टिट्यूएंट कॉल्ड ब्यूटाइल। ब्यूटाइल के मेरे पास 4 ऑप्शन हो सकते हैं। इसके अलावा when you have 5 carbons, then one important thing is which you need to know, that in case of 5 carbons you have one different case which you need to know, that is C5H11. C5H11 इसमें एक बॉन्डिंग अपनी बाकी है, अपने को एक ये एक ब्रांच है, ये कहीं पर अटैच्ड है, इसलिए एक हाइड्रोजन हमें कम दिखाई दे रहा है। इसमें यदि मेरे पास ये ऑप्शन है, ये यदि कहीं पर अटैच्ड है, 5 कार्बन है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रिवियल नेम में बोलेंगे नियोपेंटाइल। दिस इज कॉल्ड नियोपेंटाइल, और otherwise, now you have understood how do we name a complex substituent. This is 1', 2', 3'. So this will be called, can you try? Yes, you must have tried, and what you got is 2', 2' dimethyl, because there are 2 methyl groups, and then you have the propyl. Okay, this is the main branch, the one which is put in the square bracket. This box, the branch which is put in the box, this is the main branch जो चेन को, longest chain को attached होगी। तो यदि ऐसी कोई ब्रांच है, तो मेरे पास इसको नेम करने के I have got 2 choices. One is this is neopentyl, and the second one is this is the main branch. The main branch has 2 further branches, so you'll have to name them also. So what is that called? 2' dimethyl, because there are 2 methyl groups, and then the parent branch was propyl. So in this way you can have a number of substituents. Okay, so once you have named the substituents, then word root, then you have
since we are talking about alkenes, we are talking about single bonded structures, so it is going to be an alkane. And no functional group, because we are naming alkanes, substituted alkanes, which are branched alkanes. There are further few more rules to do them. One is always choose the longest chain. It is choosing the longest chain. Longest chain is a continuous one. When you move from one end to the other end, you should not be lifting your hand. It may go zigzag way also, but without lifting your hand, if you could move from one end to the other end without lifting your hand, continuous movement of your hand, then it's a longest chain. It may not be written in a straight line, okay, but it should be a continuous chain. That is what is called the longest chain, and it should have the maximum number of carbon atoms possible. Once you have chosen the longest chain, then you have to number the chain, and numbering should be done in such a way, आप इस तरह numbering करोगे कि ब्रांच को लोएस्ट नंबर मिल जाए, या ऐसे सीधे शब्दों में कहो तो सबसे जल्दी ब्रांच जहां से आ जाए ना, वहां से नंबरिंग शुरू करो. जिस साइड से भी सबसे पहले जल्दी ब्रांच आ जाए वहां से आप नंबरिंग शुरू कर दो. या आप ये याद रख लो कि हमारी ब्रांच को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए. ओके, फिर आपके पास यदि एक से ज्यादा ब्रांचेस हुई तो फिर आपको उन सारी ब्रांचेस की पोजीशंस भी बतानी पड़ेंगी, और यदि एक जैसी दो ब्रांचेस हुई या तीन ब्रांचेस हुई तो आपको डाई, ट्राई एटसेट्रा यूज करना पड़ेगा. यदि मान लो किसी ब्रांच कोई अपनी लॉन्गेस्ट चेन है, उसमें 2 मिथाइल है, तो आप उसको लिखोगे डाइमिथाइल, और डाइमिथाइल लिखने के पहले आपको न्यूमेरिकल फिक्स बताना पड़ेगा कि कौन से पोजीशन पे दोनों मिथाइल लगे हैं. यदि सेम पोजीशन पे लगे हुए होते हैं तो आपको सेम पोजीशन 2 बार बतानी पड़ती है. यदि अलग अलग पोजीशन पे लगे होते हैं तो भी आपको उन मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशन बतानी पड़ती है, क्योंकि हमें ये मालूम होना चाहिए. सपोज मैं दूसरी तरह से जाऊं, मैं आपको एक नाम दे दूं और मैं आपको बोलूं स्ट्रक्चर बनाओ. अब ये नहीं, मैंने सिर्फ लिख दिया डाइमिथाइल, तो नेचुरली आप पूछोगे कि डाइमिथाइल 2 मिथाइल हम कहाँ लगाएं. तो इसलिए हमें यदि 2 मिथाइल है हमारे पास तो दोनों की पोजीशन बतानी पड़ेगी. यदि इथाइल मिथाइल दोनों है तो भी दोनों की पोजीशन हमें बतानी ही पड़ती है कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर लगा हुआ है. उसके बाद नेक्स्ट चीज है कि हमें यदि 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे दोनों साइड से सेम इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ रहे हैं, यहां से चलूं तो भी वहीं सेकंड पे मान लो आ रहा है और इधर से चलूं तो भी सेकंड पे आ रहा है, तो मैं नंबरिंग कहां से शुरू करूं? उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? उस केस में हमें अल्फाबेटिकली अरेंज करना पड़ता है. जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले नंबर दे दो, उस साइड से नंबरिंग कर लो. जो अल्फाबेटिकली ग्रुप मान लो इथाइल और मिथाइल है, तो हमें पता है कि अल्फाबेटिकली इथाइल ई पहले आएगा ना, एम से, एम मिथाइल, ई इथाइल, तो ई पहले आएगा. तो जब अल्फाबेटिकल हम देखेंगे तो फिर इथाइल क्योंकि पहले आया है तो हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से इथाइल को लोअर नंबर मिलेगा. अब ये जो अल्फाबेट्स हैं उसमें हमें अल्फाबेट में हम आइसो और नियो का अल्फाबेट देखते हैं, पर सेकेंडरी और टर्शियरी का अल्फाबेट हम नहीं देखते हैं. जब अल्फाबेट देखोगे तो हम आइसो का देखेंगे और नियो का देखेंगे, पर हम टर्शियरी और सेकेंडरी का अल्फाबेट नहीं देखेंगे. और दूसरी बात, जब हमारे पास सिमिलर ग्रुप डाई, ट्राई ऐसे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, मिथाइल, इथाइल, उनके आगे डाई लगा होगा, ट्राई लगा होगा, तो हम डी या टी नहीं देखेंगे. पर यदि कॉम्प्लेक्स कोई नंबर है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स कोई सब्स्टिट्यूएंट है और उसमें कोई नंबर आ रहा है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, तो हम उसका अल्फाबेट देखते हैं. अभी मैं इन सब के एग्जांपल्स देके आपको बताऊंगी, पर आप कुछ चीजें ध्यान में रखो कि हमें सब्स्टिट्यूएंट्स देखने हैं, हमें सब्स्टिट्यूएंट्स देखने हैं और सब्स्टिट्यूएंट्स के प्लेसमेंट देखनी है कि वो कहाँ पे लगा हुआ है. उसके अलावा हमें प्लेसमेंट डिसाइड करने के लिए, हमें उसकी पोजीशन डिसाइड करने के लिए नंबर्स देने होते हैं, और नंबरिंग हम वहां से शुरू करते हैं जिसको हम कहते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल. कम लोअर नंबर्स पे सब्स्टिट्यूएंट्स आने चाहिए, हायर नंबर पे नहीं आने चाहिए सब्स्टिट्यूएंट. और लोएस्ट लोकेंट रूल भी होता है कि जितना जल्दी सब्स्टिट्यूएंट आए उस साइड से नंबरिंग करो. और यदि मान लो ऐसी सिचुएशन है जहां पे इधर से चलो तो भी सेम नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं,
तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि अल्फाबेटिकली देख लो बेटा, जहां से अल्फाबेटिकली पहले आ रहा हो, मान लो इथाइल मिथाइल, ई पहले आता है ना, उस साइड से नंबरिंग करो जहां से इथाइल को लोअर नंबर मिले। और जब हमारे पास में सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तब आप ये ध्यान रखना कि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स के आगे यदि कोई डाई, ट्राई, टेट्रा ये वर्ड्स लगे हुए हैं, ये नंबर्स के लिए रिप्रेजेंटेशन है, तो फिर आप डाई का डी, ट्राई का टी, टेट्रा का टी अल्फाबेटिकली देखने के लिए यूज नहीं करोगे, सिर्फ मेन सब्स्टिट्यूएंट का नाम यूज करोगे। पर यदि मेरे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, यदि मेरे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और उसमें यदि डाई ट्राई आ रहा है, तो मैं डाई ट्राई का डी और टी देखूंगी, अल्फाबेटिकली अरेंज करते समय इन दोनों को मैं देखूंगी। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में मैं डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा यदि किसी सब्स्टिट्यूएंट के आगे आ रहा होगा तो मैं नहीं देखूंगी, ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स नहीं देखूंगी, अफिक्स नहीं देखूंगी। पर यदि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नाम में यदि ये न्यूमेरिकल अफिक्स आ रहे हैं, डाई, ट्राई वगैरह, तो मैं उनके अल्फाबेट्स को कंसिडर करूंगी जब मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रही होंगी। इज दैट क्लियर? अब इन चीजों को हमें प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूंगी और हम मिलके ट्राई करते हैं, देखो हम नेमिंग कर पाते हैं कि नहीं। ओके, डन, लेट्स डू देम।